بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری بھوک پیاس مر گئی تھی۔ جب تک ابا کا کچھ پتہ نہ چلتا تب تک میرے حلق سے نوالا نہیں اتر سکتا تھا۔ میں یوں ہی لیٹ گئی تو رات بھر جاگنے کی وجہ سے آنکھ لگ گئی۔ چند لمحے بعد میں نے محسوس کیا کہ میں ابا کو دیکھ رہی ہوں۔ میں دوڑ کر ان سے لپٹ گئی۔ میں نے سسکتے ہوئے کہا، ابا کہاں چلے گئے تھے تم؟ جانتے ہو نا کہ تمہارے سوا میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ میں کتنی پریشان تھی، کچھ جانتے ہیں آپ؟ ابا نے مجھے خود سے الگ کرتے ہوئے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ اس نے کہا، میں جانتا تھا بیٹی، میں جانتا تھا کہ تم میرا انتظار کر رہی ہوگی، لیکن میں مجبور تھا بیٹی، میں بہت مجبور تھا۔ اچانک ہی ہوا چلنے لگی اور ابا کی آواز کانپنے لگی۔ اس کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں گویا سرخ شعلے بھڑک اٹھے۔ اس کا چہرہ بالکل سفید ہو گیا، جیسے اس کے جسم سے خون کا ایک ایک قطرہ نچوڑ لیا گیا ہو۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کسی لاش کو دیکھ رہی ہوں۔ ابا کی گردن سے اچانک ہی خون ابلنے لگا اور اس کی گردن دھڑ سے الگ ہو کر نیچے گر پڑی۔ میں ہکدک سی ہو کر یہ دہشت ناک نظارہ دیکھ رہی تھی۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی مگر حلق سے آواز نہیں نکل پائی۔ پھر ابا کی کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی، دانیہ، مجھے تم سے جدا ہونے پر مجبور کر دیا گیا ہے، لیکن میری بیٹی، میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا، میں تمہارے ساتھ رہوں گا ہر وقت۔ اب کوئی بھی مجھے تم سے الگ نہیں کر سکے گا، کوئی بھی نہیں۔ ہوا تیز ہو گئی تھی، افق پر بادل چھا رہے تھے اور بجلیاں بڑی شدت سے کڑکنے لگی تھیں۔ ابا مجھ سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ میں چیختی ہوئی اس کے پیچھے بھاگی، ابا ابا، لیکن ہر طرف سیاہ اندھیرا چھا گیا تھا اور میں ٹھوکر کھا کر منہ کے بل گر پڑی۔ میرا نام دانیہ ہے، میری عمر 14 سال ہے۔ میرا تعلق ایک عام سے گھرانے سے تھا۔ آج سے چند دن قبل میں بھی اپنے گھر میں آزادی سے اور ہنسی خوشی رہتی تھی۔ میرا باپ شمس الدین ایک ریڑھی والا تھا۔ وہ اپنی ریڑھی پر مختلف چیزیں اٹھائے گلیوں سے آوازیں لگاتا گزرتا تھا۔ ہمارے محلے میں تو سبھی ہم جیسے لوگ تھے جو کسی بھی چیز کو خریدنے سے پہلے 10 بار سوچتے تھے کہ کہیں اس سے کوئی فضول خرچی تو نہیں ہو رہی۔ البتہ کچھ دوسری گلیوں میں اچھی خاصی بکری ہو جاتی تھی۔ اس سے جتنے بھی پیسے ملتے تھے ان میں سے وہ کچھ گھر کے خرچے کے لیے جمع کر کے رکھتا تھا، باقی پیسوں سے پھر اپنی ریڑھی کا سامان خرید لیتا تھا اور پھر سے ریڑھی کے ساتھ ساتھ اس کے پیروں میں بھی پہیے لگ جاتے تھے۔ میری ماں میری پیدائش کے وقت سخت بیمار ہو گئی تھی۔ ابا کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ باقاعدگی سے اس کا علاج کروا سکتا اور نہ ہی اچھی اور مناسب غذا ملتی تھی۔ اس لیے ماں کی بیماری مسلسل بڑھتی گئی اور آخرکار ایک دن وہ سب سے منہ موڑ کر منو مٹی تلے جا سوئی۔ اماں کی موت کے وقت میری عمر کوئی 6 مہینے ہوگی۔ ابا کے لیے اماں کی موت دوہرے صدمے کا باعث تھی، کیونکہ ایک تو وہ عورت جس سے اس نے بے پناہ محبت کی تھی وہ اسے جیون کے سفر میں تنہا چھوڑ گئی تھی، اور دوسرا اس پر میری ذمہ داری بھی آ پڑی تھی۔ اتنی چھوٹی بچی کا خیال رکھنا اور اس کی دیکھ بھال کرنا کوئی آسان کام ہرگز نہیں تھا۔ وہ نہ تو کام پر جانا چھوڑ سکتا تھا اور نہ ہی مجھے۔ ابا کی مشکل کو دیکھتے ہوئے محلے کی ایک خاتون جو رشتے کروایا کرتی تھی، انہوں نے ابا کو دوسری شادی کرنے کا مشورہ دیا۔ ابا میری وجہ سے شادی نہیں کرنا چاہتے تھے کہ میرے ساتھ سوتیلی ماں نہ جانے کس قسم کا سلوک کرے، لیکن چند دن بعد ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ اس طرح رہنا بے حد مشکل ہے۔ وہ مجھے اور اپنی ریہڑی کو ایک ساتھ نہیں سنبھال سکتا تھا، لہٰذا وہ شادی کے لیے راضی ہو گیا اور رشتے کروانے والی وہ عورت نہ جانے کہاں سے جمیلہ بی بی کا رشتہ لے آئیں۔ جمیلہ بی بی کا شوہر بھی مر چکا تھا، اس کا صرف ایک ہی بیٹا تھا۔ جب اس سے شادی کی بات کی تو تبھی اس نے یہ بات منوا لی کہ اس کا بیٹا بھی ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ جمیلہ بی بی ایک خراٹ عورت تھی۔ اس کا رنگ کسی قدر سانولا تھا مگر اس کے جسم میں بے پناہ کشش تھی۔ ابا کی اس خاتون سے شادی کرنا ہی میرے بدترین دنوں کا آغاز تھا۔ کہنے کو تو یہ شادی میرے لیے ہوئی تھی تاکہ میری اچھی پرورش کی جا سکے، لیکن جمیلہ بی بی میری سوتیلی ماں بن گئی تو میرا وجود اس نے بہت بری طرح نظر انداز کر دیا۔ اس کی ساری محبت اپنے بیٹے کے لیے ہی تھی۔ میں رو رو کر ہلکان ہو جاتی تھی، تب کہیں جا کر وہ دودھ کی بوتل میرے منہ سے لگاتی۔ ابا گھر پر ہوتا تو اس کا رویہ کچھ صحیح ہوتا مگر مکمل طور پر نہیں۔ جیسے ہی وہ ریڑھی لے کر باہر جاتا، جمیلہ بی بی اپنی بیزاری اور نفرت کا مظاہرہ کرنے لگتی۔
میں کچھ بڑی ہوئی تو اس نے میرے ساتھ اور بھی زیادہ برا سلوک کرنا شروع کر دیا۔ صرف 5-6 سال کی عمر میں وہ مجھ سے گھر کا بہت سا کام لیا کرتی تھی۔ اب تو وہ ابا سے بھی نہیں ڈرتی تھی۔ ایک بار ابا نے میری طرفداری کرتے ہوئے کچھ کہا تو جمیلہ بی بی نے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ وہ چیخو پکار مچائی کہ الامان۔ بس اس کے بعد بیچارے ابا بھی چپ ہو کر بیٹھ گئے۔ جمیلہ بی بی کا بیٹا ریاض عرف مجنوں انتہائی خودسر اور بدتمیز تھا۔ وہ اکثر مجھے مارتا پیٹتا رہتا تھا۔ میرے لیے اپنے ہی گھر میں کوئی جگہ نہیں بچی تھی۔ میں روتی اور سسکتی تھی۔ کبھی کبھی ابا میرے گالوں پر تھپڑوں کے نشان دیکھ لیتے تھے تو مجھے لپٹا کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑتے تھے۔ بس ان کا پیار ہی اس کڑکتی دھوپ میں میرے لیے جاں بخش سایہ تھا، جس کی ٹھنڈی چھاؤں میرے لیے 2 گھڑی سستانے کا کام کر دیتی تھی۔ لیکن میری بدقسمتی کے ستارے ابھی بھی گردش میں تھے۔ جب میں 14 سال کی ہوئی تو مجھے ایک شدید اور ناگہانی صدمہ اٹھانا پڑا۔ اس دن ابا کو بہت دیر ہو گئی تھی۔ وہ کبھی مغرب کی نماز کے بعد تو کبھی چند منٹ پہلے گھر آ جایا کرتے تھے، مگر اس دن تو انہیں بہت زیادہ دیر ہو چکی تھی۔ میں پریشانی سے بار بار باہر آ کر دروازہ کھول کر جھانکتی اور پھر اندر آ جاتی۔ نہ جانے ابا نے اتنی دیر کیوں لگا دی؟ آخر کہاں رہ گئے ہیں وہ؟ یا اللہ خیر کرنا۔ میں نے ٹہلتے ہوئے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ تبھی جمیلہ بی بی کی پاٹدار آواز گونجی، اری دانی، کیا مر گئی ہے تو؟ آٹا کیا تیرا باپ گوندھے گا آ کر، یا پھر تیری ماں قبر سے اٹھ کر آئے گی؟ چل اب بند کر یہ نخرے اور آٹا گوندھ کر دے، ریاض کو بھوک لگی ہے۔ اس کی کڑوی کسیلی باتوں پر میں صبر کے گھونٹ پی کر چھپر کے نیچے چلی آئی، جہاں وہ ہانڈی چڑھائے بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس نے کھا جانے والے لہجے میں کہا، کہاں مر گئی تھی اتنی دیر تک؟ کب سے آوازیں دے رہی ہوں تجھے، کان بند ہو گئے تھے کیا تیرے؟ میں نے پریشانی سے کہا، اماں جی ابا ابھی تک نہیں آئے، پتہ نہیں اتنی دیر کیوں کر دی ہے انہوں نے۔ جمیلہ بی بی نے غصے سے کہا، ہاں تو کون سا سال بیت گیا ہے اسے گئے ہوئے، آ جائے گا تھوڑی دیر میں منہ اٹھا کے، تو کام کر اپنا۔ مجھے گھور کر وہ دوبارہ ہانڈی میں ڈوئی چلانے لگی۔ میں بجھے ہوئے دل کے ساتھ تھال لے کر بیٹھ گئی اور آٹا گوندنے لگی۔ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ میں نے آٹا گوندھ کر جمیلہ بی بی کے سامنے رکھا تو وہ روٹیاں بنانے لگی۔ مغرب سے عشاء کا وقت ہو گیا تھا، مگر ابا کا کہیں پر بھی کچھ پتہ نہیں تھا۔ جمیلہ بی بی کو کوئی فکر ہی نہیں تھی۔ وہ اور ریاض کھانا کھا کر اب سونے کے لیے لیٹنے لگے تھے۔ میں نے ہمت کر کے ایک بار پھر کہا، اماں ابا نہیں آیا ابھی تک؟ جمیلہ نے بیزاری سے کہا، تو میں کیا کروں، بیٹھ گیا ہوگا کہیں۔ میں نے کہا، لیکن اس سے پہلے تو کبھی ابا نے اتنی دیر نہیں لگائی، اگر اسے دیر سے آنا ہوتا ہے تو وہ مجھے بتا کر جاتا ہے۔ جمیلہ بی بی اپنی چارپائی پر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس نے خونخوار نظروں سے مجھے دیکھ کر کہا، نہ تو میں کیا کروں، بول سڑکوں پر جا کر شدائیوں کی طرح آوازیں لگاؤں تیرے باپ کے نام کی؟ کیا کروں میں سہم کر چپ ہو کر بیٹھ گئی۔ جمیلہ بی بی دوبارہ سو گئی۔ وہ ساری رات میں جاگ کر منتظر نظروں سے دروازے کو دیکھتی رہی، ابا کے آنے کا انتظار کرتی رہی، مگر میرا انتظار بس انتظار ہی رہا۔ ابا خود آیا نہ اس کی کوئی خبر آئی۔ صبح فجر کی اذان ہو گئی تو میں نے اٹھ کر نماز ادا کی اور پھر گڑ گڑا کر اپنے ابا کی خیریت کی دعائیں مانگنے لگی۔ کچھ سویرا ہوا تو میں باہر نکل آئی اور سیدھی چاچا علی نواز کے گھر پہنچ گئی۔ چاچا علی نواز کی ابا سے بہت اچھی دوستی تھی، اکثر وہ اکٹھے ہوتے تھے۔ جمیلہ بی بی کو تو ابا کے نہ آنے کی کوئی فکر ہی نہ تھی۔ اب لے دے کر میرے پاس چچا علی نواز ہی ایک ایسا شخص بچا تھا جسے شاید ابا کی کچھ تھوڑی بہت فکر ہو سکتی تھی۔ میں نے چچا کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اس کے بیٹے علی نے دروازہ کھولا۔ مجھے اس وقت وہاں کھڑا دیکھ کر وہ چونک گیا۔ اس نے حیرت سے کہا، دانیہ تم اتنی صبح یہاں پر، سب خیر تو ہے نا؟ میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں علی، خیریت نہیں ہے، ابا کل صبح کا گیا اب تک نہیں لوٹا ہے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ علی کو یہ بتاتے ہوئے میری آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو گئیں۔ علی مجھے اندر لے گیا۔ چاچا شیر نواز بھی مسجد سے ابھی ہی واپس آیا تھا، وہ بھی ساری بات سن کر سخت پریشان ہو گیا۔ اس نے خفگی سے کہا، تم نے مجھے رات کو ہی کیوں نہیں بتا دیا، میں اب تک تو اسے تلاش بھی کر چکا ہوتا۔ میں نے آنسو بہاتے ہوئے کہا، میں کیا کرتی چچا، گھر میں میرے علاوہ کسی کو فکر ہی نہیں تھی۔ میں نے رات میں کئی بار اماں سے کہا، مگر ہر بار اس نے بے پرواہی سے کہا کہ وہ آ جائے گا خود ہی، وہ رات میں مجھے باہر نہیں نکلنے دیتی۔ چاچا شیر نواز نے میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے شفقت سے کہا، تم فکر مت کرو بیٹی، میں ہر طرح سے اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کروں گا، اللہ نے چاہا تو واپسی پر وہ میرے ساتھ ہی ہوگا۔ کیا اس نے جانے سے پہلے تم سے یا جمیلہ بی بی کو
कुछ भी बताया था कि वो कहाँ जा रहा है? मैंने नफी में सर हिलाते हुए कहा, नहीं चाचा, वो रोज की तरह रेडी पर सब्जी लाद कर चला गया था। उसने इस बारे में कुछ भी नहीं कहा था। चाचा शेरनवाज पुरसोच लहजे में बोले, वो इतना गैर जिम्मेदार तो है नहीं कि यूं बिना बताए इतने वक्त के लिए कहीं चला जाए। खुदा ना खास्ता कहीं। मेरी रूहान सी शक्ल देखकर उन्होंने बात अधूरी छोड़ दी और मुझे दिलासा देते हुए बोले, दानिया बेटी, तुम परेशान मत हो, मैं उसका खोज लगा कर ही दम लूंगा। तुम बस अल्लाह ताला से उसकी खैर आफियत से होने की दुआ मांगो। ये कहकर वो बाहर चले गए। मैं भी अपने घर चली आई और बेचैनी से चाचा शेरनवाज की तरफ से किसी खबर का इंतजार करने लगी। वक्त तेजी से गुजरता गया। अब शायद जमीला बीबी को भी कुछ फिक्र होने लगी थी। जब ही वो इधर से उधर टहलने लगी थी, मैंने उसे बता दिया था कि मैं शेरनवाज चचा को अब्बा को ढूंढने का कह आई हूँ। उसने कुछ कहा नहीं था, मगर उसकी हरकत और सकनात बता रही थी कि वो भी मेरी तरह ही मुस्तरिब है। मैं बार बार इस तवक्को पर बाहर जाकर दरवाज़ा खोलकर गली में झांक रही थी कि अभी अब्बा चचा शेरनवाज के साथ आते ही होंगे, मगर सुबह से दोपहर हो गई और कुछ पता नहीं चला। बेचैन होकर मैं दोबारा चचा के घर पहुंच गई। दरवाजे पर दस्तक दी तो अली बाहर निकला। उसे देखते ही मैंने पूछा, अली, चाचा तो घर नहीं आए? अली ने नफी में सर हिलाकर कहा, नहीं तो, अभी तक तो नहीं आए। मैं मायूस होकर पलटने लगी तो अली ने जल्दी से मेरा हाथ थामते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो दानिया, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैंने मुड़कर उसकी तरफ देखा। वो मुझसे 3 साल बड़ा था। मैं उस वक्त 14-15 साल की थी, लेकिन मैं जिस माहौल में रहती थी उसने मुझे अपनी उम्र से बड़ा सोचना सिखा दिया था। अली की आंखों में छुपी मोहब्बत मेरे लिए अनजान नहीं थी, लेकिन मेरा गली में इस तरह खड़े होना भी मुनासिब नहीं था। इसलिए मैंने जल्दी से अपना हाथ छुड़ा लिया और कुछ कहे बगैर घर की तरफ चल दी। उस दिन मैंने रियाज की धमकियों और गालियों के बावजूद खाना नहीं पकाया। जमीला बीबी ने न जाने क्या सोचकर हांडी रोटी खुद ही कर ली और मेरे सामने खाना रखकर शायद जिंदगी में पहली बार नर्म लहजे में बोली, दानी, खाना खा ले, तूने रात को भी कुछ नहीं खाया, तेरा अब्बा आ जाएगा वापस। ये कहकर वो चली गई, लेकिन मैंने खाने को हाथ भी नहीं लगाया। मेरी भूख प्यास मर गई थी। जब तक अब्बा का कुछ पता न चलता तब तक मेरे हलक से निवाला तो नहीं उतर सकता था। मैं यूं ही लेट गई तो रात भर जागने की वजह से आंख लग गई। चंद लम्हे बाद मैंने महसूस किया कि मैं अब्बा को देख रही हूँ। मैं दौड़कर उनसे लिपट गई। मैंने सिसकते हुए कहा, अब्बा कहाँ चले गए थे तुम? जानते हो ना कि तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं कितनी परेशान थी, कुछ जानते हैं आप? अब्बा ने मुझे खुद से अलग करते हुए मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे। उसने कहा, मैं जानता था बेटी, मैं जानता था कि तुम मेरा इंतज़ार कर रही होगी, लेकिन मैं मजबूर था बेटी, मैं बहुत मजबूर था। अचानक ही हवा चलने लगी और अब्बा की आवाज़ कांपने लगी। उसके चेहरे का रंग बदलने लगा। उसकी आंखों में गोया सुर्ख शोले भड़क उठे। उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद हो गया, जैसे उसके जिस्म से खून का एक एक कतरा निचोड़ लिया गया हो। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे जैसे मैं किसी लाश को देख रही हूँ। अब्बा की गर्दन से अचानक ही खून उबलने लगा और उसकी गर्दन धड़ से अलग होकर नीचे गिर पड़ी। मैं हकदक सी होकर ये दहशतनाक नज़ारा इसे देख रही थी। मैंने चीखने की कोशिश की, मगर हलक से आवाज़ नहीं निकल पाई। फिर अब्बा की कटी हुई गर्दन से आवाज़ आई, दानिया, मुझे तुमसे जुदा होने पर मजबूर कर दिया गया है, लेकिन मेरी बेटी, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा हर वक्त। अब कोई भी मुझे तुमसे अलग नहीं कर सकेगा, कोई भी नहीं। हवा तेज हो गई थी। उफक पर बादल छा रहे थे और बिजलियां बड़ी शिद्दत से कड़कने लगी थीं। अब्बा मुझसे दूर होता जा रहा था। मैं चीखती हुई उसके पीछे भागी, अब्बा, अब्बा, लेकिन हर तरफ से अंधेरा छा गया था और मैं ठोकर खाकर मुंह के बल गिर पड़ी। अचानक ही मैंने किसी को अपने चेहरे पर थप्पड़ मारते हुए महसूस किया। कोई मुझे बुला रहा था, दानिया, दानिया उठो, दानिया होश में आओ, दानिया जागो। मैंने आंखें खोलने की कोशिश की। अंधेरे की सियाह चादर हट गई और मुझे कोई अपने ऊपर झुका नजर आया। मैं तेजी से उठकर बैठ गई तो वो भी सीधा हो गया। वो चचा शेरनवाज था। मैंने उसका बाजू पकड़ते हुए पूछा, चाचा, अब्बा, अब्बा को क्या हुआ है? वो कहाँ है? चाचा शेरनवाज की आंखों से आंसू गिरने लगे। वो किसी सदमे से निठाल दिखाई दे रहे थे। मैंने बेचैन होकर उनसे पूछा, चाचा बताओ ना, अब्बा कहाँ है? चाचा शेरनवाज ने
टूटे फूटे लहजे में पूछा, दानिया, तेरे अब्बा ने कल जाते वक्त किस रंग के कपड़े पहन रखे थे? मेरे दिल को धक्का सा लगा। चाचा ये क्यों पूछ रहे थे? मैंने खुद को संभालने की कोशिश करते हुए पूछा। उन्होंने सफ़ेद रंग का कुर्ता और शलवार पहन रखी थी। लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं ये बात? और आप तो अब्बा को ढूंढने गए थे ना? फिर? लेकिन मेरी बात अधूरी रह गई। खुले दरवाजे से मुझे चारपाई पर पड़ा हुआ एक वजूद नजर आया, जिस पर सफ़ेद चादर डली हुई थी। उसका एक हाथ बाहर दिखाई दे रहा था और मुझे उसकी शहादत की कटी हुई उंगली भी दिखाई दे गई। और अब्बा की भी तो शहादत की उंगली कटी हुई थी। एक बार कुर्बानी का गोश्त बनाते हुए ये उंगली टोके के नीचे आकर कट गई थी। चारपाई के नीचे खून की बूंदें टपक रही थी। ये लाश किसकी थी और इसे यहाँ क्यों लाया गया था? मुझे समझने में देर नहीं लगी। मैंने चचा शेरनवाज को सवालिया नजरों से देखा। बेहद टूटे हुए नजर आ रहे थे। अली की आंखों में भी आंसू नजर आ रहे थे और जमीला बीबी वो चारपाई के करीब बैठी बैन कर रही थी, सीना कूट रही थी और न जाने क्या कह रही थी। मेरे सोचने समझने की कुव्वतें सलब होने लगीं। मैं बेख्तियार चारपाई की तरफ दौड़ते हुए चीखी, अब्बा, अब्बा! लेकिन मुझे रास्ते में ही किसी ने रोक लिया। अली और रियाज ने मुझे दोनों बाजुओं से जकड़ लिया था। अली ने आंसू बहाते हुए नफी में सर हिलाकर कहा, नहीं दानिया, नहीं, मत देखो, तुम नहीं देख पाओगी। मैं जोर लगाते हुए चीखी, क्यों ना देखूं? मेरे अब्बा हैं वो, छोड़ो मुझे। मैं फिर से जोर लगाने लगी तो अली ने एक झटके से मेरे कंधे पकड़कर झंझोड़ते हुए कहा, क्योंकि उनकी गर्दन नहीं है, उनका सर नहीं है। तुम नहीं देख सकोगी दानिया, वहां देखने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं ठहर गई। मैंने खाली खाली नजरों से अली को देखा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे ख्वाब में अब्बा की कटी हुई गर्दन याद आई और मैं चीख मारकर अली के सीने में अपना मुंह छुपाने की कोशिश करने लगी। आंसुओं की आबशारें हर बंद तोड़कर बह निकली और मैं फूट फूट कर रोने लगी। अब्बा की मौत को आज 3 महीने हो गए थे। उसे बड़ी बेदर्दी से मारा गया था। किसी ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया था। चाचा शेरनवाज न जाने कहां कहां उसे ढूंढता फिर रहा था, मगर हर जगह ही नाकामी का सामना करना पड़ा। लाचार होकर उसने पुलिस स्टेशन का रुख किया ताकि अब्बा की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा सके। लेकिन रास्ते में उसे एक ज़ेर तामीर इमारत, जिसका अभी काम अधूरा था, वहां पर उसे अब्बा की रेहड़ी खड़ी नजर आई। वो चौंक कर वहीं पर खड़ा हो गया और आसपास मुतलाशी नजरों से देखने लगा। कदमों के निशानात पर वो अंदर पहुंचा तो उसे अब्बा की लाश अंदर दिखाई दी, लेकिन वो बेसर के लाश थी। चाचा ने फौरन ही पुलिस स्टेशन से राब्ता कायम किया और उन्होंने तस्दीक कर ली कि ये अब्बा की ही लाश थी। अब्बा की मौत के बाद हमारे लिए बहुत सी मुश्किलें खड़ी हो गई थी और तभी मेरी सौतेली माँ का कोई दूर पार का कज़न हम सबको लेने के लिए आ गया था। मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती थी। अली से दूर जाना मेरे लिए मौत के बराबर था, मगर मैं मजबूर थी। मेरी सौतेली माँ जमीला बीबी मुझे लेकर शमशेर मामू के यहाँ आ गई थी। अब्बा वाला घर वैसे भी किराए का था, इसलिए सभी वहाँ से समेट समाट कर शमशेर मामू के घर आ गए। इस दौरान बार बार मुझे महसूस होता कि जैसे अब्बा मेरे आसपास हैं, मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन मैं कुछ देख नहीं पाती थी। अलबत्ता उनकी मौजूदगी को कई बार महसूस किया था मैंने, मगर फिर ये सोचकर चुप हो जाती थी कि हो जाता है, ये मेरा वहम हो। उस दिन जो अजीबोगरीब ख्वाब देखा था उसकी वजह से हो शायद, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता था कि आखिर अब्बा को इतनी बेरहमी से किसने मारा था और क्यों। अब्बा तो एक आम और सीधे साधे शख्स थे, किसी से दुश्मनी तो दूर की बात, उन्होंने तो कभी किसी से तल्ख लहजे में बात तक न की थी। फिर किसी की उनसे इस कदर खूनी दुश्मनी हो गई कि उसने अब्बा की जान ही ले ली और ना सिर्फ उन्हें मार दिया बल्कि उनका सर भी कहीं गायब कर दिया। क्यों? पुलिस ने बहुत दूर तक का इलाका छान मारा था, मगर उन्हें कुछ नहीं मिला था। उस वक्त भी मैं इन्हीं सोचों में गुम न जाने कब सो गई। नीम गनूदगी के आलम में मैंने अपने आसपास किसी को महसूस किया तो आंखें खोल दी और सामने देखते ही मेरी आंखें मारे हैरत के फटी की फटी रह गईं, क्योंकि सामने ही मैंने अब्बा को देखा था। वो दीवार से टेक लगाए उदासी से छत की तरफ देख रहे थे। उनके जिस्म पर वही सफ़ेद लिबास था जो वो आखिरी दिन घर से जाते हुए पहने हुए थे। मैंने लर्जा आवाज में कहा, अब्बा, लेकिन अब्बा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो इसी तरह छत की तरफ देखते रहे। मैंने ये महज चंद लम्हे तक देखा, फिर चंद लम्हे बाद वहां पर कोई भी न था। मैं घबराकर चिल्लाती हुई बाहर भागी, अम्मा, अम्मा!
जमीला बीबी उस वक्त बाहर शमशेर अली के साथ बैठी हुई थी। उसने मुझे इस तरह चिल्लाते हुए देखकर नागवारी से पूछा, क्या हुआ है? कुत्ते लग गए हैं क्या तेरे पीछे, जो यूं बदहवास होकर भाग रही है? मैंने फूली हुई सांसों से कहा, अम्मा, अब्बा, मैंने अब्बा को देखा, मैंने अब्बा को देखा है अम्मा। जमीला बीबी और शमशेर अली के चेहरे पर खौफ सा छा गया। शमशेर ने आगे बढ़कर डांटने वाले अंदाज में कहा, क्या पागलों जैसी बातें कर रही हो दानी? तेरा अब्बा मर चुका है, फिर वो तुझे कैसे दिखाई दे सकता है? कहीं तूने कोई ख्वाब तो नहीं देख लिया? मैंने सख्ती से नफी में सर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैंने खुद उसे अपनी आंखों से देखा है, वो कोई ख्वाब नहीं था। मेरी बात पर वो काफी परेशान हो गए। फिर शमशेर अली कुछ हिचकिचाते हुए मेरे साथ कमरे तक आया। अंदर जब उसे कोई नजर न आया तो उसने सुकून की सांस लेते हुए कहा, यहाँ तो कोई नहीं है, खामखा चिल्ला रही थी तू। मरे हुए लोग भी क्या कभी वापस आते हैं? वो बड़बड़ाता हुआ वापस चला गया। अलबत्ता जमीला बीबी कुछ सहमी सहमी सी नजर आ रही थी। एक नजर मुझ पर डालकर वो भी बाहर चली गई। मैं अब्बा को याद करते हुए उदास होकर एक तरफ बैठ गई। शमशेर अली दूसरे कमरे में बेचैनी से टहल रहा था। उसके चेहरे पर परेशानी के आसार थे। थोड़ी देर बाद जमीला बीबी भी वहां आ गई। उसके चेहरे पर सरासीमगी के आसार थे। उसने घबराई हुई आवाज में कहा, शमशेर, अगर दानिया की बात सच हुई तो? शमशेर अली ने अपनी परेशानी छुपाते हुए कहा, ऐसा कैसे हो सकता है जमीला? भला कोई मरा हुआ इंसान आज तक जिंदा हुआ है? कैसी बच्चों जैसी बातें कर रही हो तुम? जमीला ने कहा, लेकिन शमशेर, उसने कुछ तो देखा है जो वो ऐसे कह रही है। अगर उसकी बात सच साबित हुई तो मैं और तुम। इससे पहले कि वो अपनी बात मुकम्मल करती, शमशेर ने झपट कर उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया। फिर वो सख्त आवाज में बोला, जमीला, मैं कितनी बार बकवास कर चुका हूँ कि अपना मुंह बंद रखो, दीवारों के भी कान होते हैं। खबरदार, जो इस बारे में एक लफ्ज भी मुंह से निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जमीला बीबी की आंखों में आंसू चमकने लगे। वो रोते हुए शमशेर अली से लिपट गई। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है। शमशेर अली, तुम कल जाकर सरकार साईं से तावीज लिखवा कर लाना। शमशेर अली ने अपनी बाहें उसके गिर्द लपेटते हुए नर्म लहजे में कहा, तुम परेशान मत हो, मैं कल सुबह सवेरे ही जाकर सरकार साईं से मिलता हूँ। वो दोनों इस बात से बेखबर थे कि किसी की नफरत भरी निगाहें उन्हें देख रही हैं। अगले दिन शमशेर अली जरा देर से जागा था। मैं घर की सफाई सुथराई कर रही थी। यहाँ आते ही जमीला बीबी ने सारा काम का बोझ मुझ पर लाद दिया था और खुद चादर की बक्कल मारकर सवेरे ही मोहल्ले की सैर को रवाना हो जाती थी। रियाज तो था ही बदमाश और आवारागर्द, दिन भर न जाने कहाँ कहाँ मारा मारा फिरता रहता, और अब तो उसने जुआ भी खेलना शुरू कर दिया था, इसलिए वो भी जा चुका था। घर में बस मैं और शमशेर अली ही थे। शमशेर अली बाहर निकला तो उस वक्त मैं दुपट्टा कमर से बांधे सहन में झाड़ू लगा रही थी। वो कमरे के दरवाजे पर खड़ा होकर मुझे देखने लगा। उसके देखने का एहसास हुआ तो मैंने जल्दी से दुपट्टा खोलकर सर पर डाला और पूछा, क्या बात है शमशेर मामू, कुछ चाहिए क्या आपको? उसने सर से पांव तक मुझे भूखी नजरों से देखते हुए कहा, तू मुझे मामू मत कहा कर, तेरा मामू नहीं हूँ मैं। ये कहकर वो मेरे करीब आ गया। मैंने एक तरफ हटने की कोशिश की तो उसने लपक कर मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने खौफजदा नजरों से उसे देखते हुए कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़े मुझे, आप मेरे बाप की उम्र के हैं। वो झल्ला गया। उसने मुझे चोटी से पकड़कर झंझोड़ते हुए कहा, बार बार अपने बाप का जिक्र क्यों करती है? मर गया ना वो, अब कब्र से उठकर तो नहीं आएगा तेरे लिए। ना लिया कर मेरे सामने उसका नाम, नफरत करता हूँ मैं उससे। मैं वहशतज़दा अंदाज में खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। अचानक ही शमशेर अली को एक झटका सा लगा। वो लड़खड़ाकर मुझसे दूर खड़ा हो गया। उसके हाथों में शदीद करंट सा दौड़ गया था। वो दर्द से दोहरा होते हुए हाथ झटकने लगा। मैं मौके से फायदा उठाकर दौड़ती हुई कमरे में घुस गई और दरवाजा बंद करके कुंडी लगा दी। मुझे अपनी बेबसी पे रोना आ रहा था। काश आज अब्बा जिंदा होता तो उस शख्स की जुर्रत ना होती मुझे हाथ लगाने की। तभी मेरे कानों में किसी की सरगोशी सुनाई दी, मैं यहीं पर हूँ दानिया, तुम्हारे साथ हूँ। मेरा रुआं रुआं खौफ से लरज उठा। ये आवाज किसकी थी? शायद, लेकिन नहीं, यकीनन ये अब्बा की आवाज ही थी। मैंने सहमी हुई नजरों से इधर उधर देखा, लेकिन यहाँ पर मेरे सिवा कोई भी नहीं था। मैंने दरवाजे पर हल्की सी दर्ज करके देखा। शमशेर अली बाहर जा रहा था।
मैं चंद लम्हे तक उसे जाते देखती रही, फिर बाहर आ गई। शमशेर अली बदहवासी के आलम में टैक्सी के जरिए एक कच्ची बस्ती में जा पहुंचा। ये जगह शहर के अंदर थी और यहाँ पर हर तरफ गंदगी फैली हुई थी। वो इधर उधर देखते हुए एक गली में घुस गया। ये गली बहुत पतली थी, इतनी कि बस एक आदमी ही आराम से चल सकता था। थोड़ा आगे जाने के बाद कोने के एक घर के सामने रुक गया। दरवाजे पर टाट पड़ा हुआ था। उसने वो हटाकर दस्तक दी तो एक औरत ने दरवाजा खोला। वो शमशेर अली को जानती थी। जब ही उससे कुछ पूछे बगैर उसे अंदर आने दिया और दरवाजा दोबारा बंद कर दिया। ये मकान खासा तंगो तारीख था। हर तरफ अजीब सी बू थी जो जी को मगदर कर रही थी। ये एक गंदा सा घर था और कोई नफीस तबीयत का इंसान यहाँ पर शायद एक मिनट भी ठहरना गवारा न करता। थोड़ी देर बाद शमशेर अली एक नीम अंधेरे कमरे में एक अजीब से हुलिये वाले शख्स के सामने दो जानू होकर बैठा हुआ था। उस आदमी ने काले रंग का लिबास पहना हुआ था। गले में किसी जानवर की हड्डी डोरी से बंधी हुई लटक रही थी। आंखों में सुर्ख रंग लगाया हुआ था और उसके सर और दाढ़ी के बाल बेतहाशा बड़े हुए थे। उससे बेहद गंदी और जी मतलाने वाली बू आ रही थी, मगर शमशेर अली को शायद इसका एहसास ही नहीं हो रहा था। उस शख्स के आगे एक अंगीठी नुमा चीज रखी थी। शमशेर अली ने परेशान से लहजे में उसे सुबह होने वाला वाकया बताया तो सरकार साईं के चेहरे पर फिक्रमंदी की लकीरें गहरी हो गईं। वो आंखें बंद करके कुछ पढ़ता रहा, फिर अपनी खौफनाक सुर्ख आंखों से उसे देखते हुए बोला, तुमने सही से काम नहीं किया था शमशेर अली, इसीलिए वो वापस पलट रहा है। उसकी ताकत अभी कम है, लेकिन जैसे ही 7 दिन गुजरेंगे वो बेइंतहा ताकतवर हो जाएगा और फिर तुम ही नहीं, मैं भी खतरे में पड़ सकता हूँ। उसकी बात सुनकर शमशेर अली के चेहरे का रंग जर्द हो गया। उसने कांपते हुए लहजे में कहा, लेकिन सरकार साईं, मैंने तो वैसा ही किया था जैसा आपने बताया था, और फिर वो तो मर गया है, फिर वो वापस कैसे पलट सकता है? क्या वो दोबारा जिंदा होगा? सरकार साईं ने खूनख्वार नजरों से उसे देखते हुए गुर्राती हुई आवाज में कहा, वो वापस जिंदा नहीं होगा अहमक, लेकिन उसकी रूह को अभी तक सुकून नहीं मिला, इसलिए वो भटक रही है, और जब तक उसकी रूह को सुकून नहीं मिल जाता, कोई मुस्तकिल ठिकाना नहीं हो जाता, तब तक वो मुसलसल ताकत हासिल करता रहेगा। इसलिए तुम्हें अब उसको रोकना होगा। शमशेर अली की तो ये सुनकर ही हालत खराब हो गई थी, लेकिन उसने हिम्मत करके कहा कि क्या करना होगा मुझे सरकार साईं? सरकार साईं अपनी झाड़ झनकार दाढ़ी में हाथ फेरते हुए उसे कुछ बताने लगा। उसकी बात सुनकर शमशेर अली के चेहरे का रंग बदला, मगर वो उसके अहकामात पर अमल करने पर मजबूर था, इसलिए उसके पास उसकी बात मानने के सिवा कोई चारा न था। इसलिए उसने सर हिला दिया। सरकार साईं ने अपने पास पड़ी हुई लकड़ी की संदूकची खोलकर उसमें से कपड़े में लिपटी हुई एक हड्डी निकाली और उसे देते हुए कहा, तुम और तुम्हारे घर वाले जब भी खाना खाओ तो ये हड्डी सालन में डालकर हिला देना। अगर किसी एक ने भी ऐसा ना किया तो तुम्हारा चिल्ला नाकाम हो जाएगा। शमशेर ने कुछ कराहत से उस हड्डी को देखा, मगर सर पर मंडलाने वाला खतरा याद आया तो फौरन आगे बढ़कर उसे ले लिया। उसके बाद सरकार साईं से इजाजत लेकर वो चला गया। मैं रात के खाने की तैयारी कर रही थी जब शमशेर अली वापस आया। उसने आते ही जमीला बी को अपने पास बुलाया। वो दोनों अंदर कमरे में कुछ खुसर फुसर कर रहे थे, फिर बाहर आ गए। उनके चेहरों पर छाया हुआ खौफ व हरास मुझे तजस्सुस में मुब्तला कर रहा था। कुछ अजीब था उनके रवैये में। जब से मैं यहाँ आई थी तब से ही मैंने ये बात महसूस की थी कि उन दोनों के दरमियान कुछ न कुछ ऐसा था जो समझ में नहीं आ रहा था। खास तौर पर जब से मैंने अब्बा को देखने वाली बात उन्हें बताई थी, तब से वो बेहद डरे डरे से नजर आ रहे थे। जमीला बीबी बात बात पर मुझे सहमी हुई नजरों से देखते हुए कुरेदने की कोशिश करती थी कि क्या मैंने सचमुच अब्बा को देखा था। मैं उसके सवालों से तंग आ जाती थी, मगर बताने के सिवा कोई चारा न था। उस वक्त भी वो दोनों बार बार एक दूसरे के कान में खुसर फुसर कर रहे थे। फिर जमीला उठकर सालन वाली हांडी के करीब बैठ गई और उसने थोड़ा सा सालन निकालकर चखने के बाद कहा, ये मिर्चें तो बिल्कुल भी कड़वी नहीं हैं। दानी, जा
ज़रा अंदर से सब्ज मिर्चें तो पकड़ ला, ऐसा फीका सालन कौन खाएगा। जा मेरी बच्ची, शाबाश। मैं तो इसी बात पर हैरान थी कि इतनी मिर्चें होने के बावजूद उसे सालन फीका लग रहा था। उसके इस तरह प्यार से पुचकारने पर तो मैं बेहोश होते होते बची। मुझे तो याद नहीं पड़ता था कि कभी जमीला बीबी ने मेरे साथ कुछ नरमी से बात की हो। यही वजह थी कि जबान से उसे अम्मा कहने के बावजूद ना तो मैं उसे माँ समझती थी और ना ही मेरे दिल में उसके लिए कोई इज्जत थी। उसके पास मेरे लिए या तो तंज और ताना तशनी होते थी या फिर डांट फिटकार। फिर आज क्या सूरज मगरिब से तुलू हुआ था कि वो मुझसे इतने प्यार भरे अंदाज में बात कर रही थी। मेरे जहन में शक का कीड़ा सर उठाने लगा। उसकी इस मीठी जबान के पीछे कोई ना कोई वजह तो जरूर थी। बहरहाल मैं उठ गई और बावर्ची खाने की तरफ चल पड़ी। मैंने बावर्ची खाने की खिड़की में खड़े होकर देखा। जमीला ने पल्लू में छुपाई हुई कोई चीज निकाली और सालन की हंडिया में घुमाने फिराने के बाद दोबारा निकाल ली। उसके बाद वो खड़ी हो गई और मुझे आवाज लगाकर कहने लगी, दानी मिर्चें मत ला, ठीक है बस सालन। मैं उलझकर उसके रवैये को सोचने लगी। न जाने क्या डाला था उसने सालन में। मैंने फैसला कर लिया कि मैं वो सालन नहीं खाऊंगी। बाहर आई तो सबके खाने का वक्त हो रहा था। यहाँ पर सब इकट्ठे ही जमीन पर दरी बिछाकर खाते थे। रियाज भी अपनी आवारागर्दी से फुर्सत पाकर आ गया था। उसके आते ही जमीला ने खाना खाने का हुक्म दे दिया। जैसे ही सब खाने के लिए बैठे, एक ऐसा वाकया रूनुमा हुआ जिसकी शायद किसी को भी तवक्को नहीं थी। सालन का डोंगा अचानक ही अपनी जगह से उछला और सीधा शमशेर अली पर जा गिरा। गरम गरम सालन ने उसे जला डाला था। वो तकलीफ से तड़प कर चिल्लाया तो सभी घबरा गए। उस दिन किसी ने भी खाना नहीं खाया। शमशेर अली अच्छी खासी अजियत में मुब्तला था। उसे और जमीला को परेशान और तकलीफ में देखकर मुझे दिल ही दिल में बड़ी खुशी हुई। मगर मैंने अपने रवैये से ये जाहिर नहीं किया। मैं अपने कमरे में चली गई और दरवाजे को अच्छी तरह बंद करके लेट गई। आज अब्बा बहुत याद आ रहा था। मैं उसके ईसाले सवाब के लिए लेटे लेटे ही सूरह इखलास पढ़ने लगी। थोड़ी देर बाद मैंने दोबारा वही कैफियत महसूस की। मुझे वाज़ेह तौर पर लग रहा था कि कोई मेरे पास बैठा है, लेकिन डर की वजह से ना तो मैं आंखें खोल रही थी, ना ही इधर उधर देख रही थी। चंद लम्हे बाद मुझे नींद आ गई। दूसरे कमरे में शमशेर अली और जमीला बेहद परेशानी के आलम में बैठे हुए थे। जमीला ने सहमी हुई आवाज में कहा, शमशेर, मुझे बहुत डर लग रहा है। सरकार साईं की बात पर अमल नहीं हो सका, अब क्या होगा। उसकी बात पर शमशेर अली ने भी थके थके लहजे में कहा, अब बस वो आखिरी अमल ही बचता है, लेकिन उसके लिए मुझे 2 दिन इंतज़ार करना होगा। इसके अलावा अब हम और कुछ नहीं कर सकते। वो दोनों भी अंदेशों में घिरे सोने के लिए लेट गए। रात के किसी वक्त उनकी आंख खुली तो दरवाजे पर दस्तक हो रही थी। जमीला डरकर शमशेर अली से लिपट गई थी। शमशेर ने भी उलझे हुए अंदाज में सरगोशी की। इस वक्त कौन हो सकता है? जमीला ने कांपते हुए लहजे में कहा, मालूम नहीं, तुम्हें दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए। शमशेर अली भी उसके ख्याल से मुत्तफिक था, मगर दरवाज़ा दोबारा खटखटाया गया। 3-4 बार ऐसा हुआ तो मजबूरन शमशेर अली ने उठकर दरवाज़ा खोला, लेकिन बाहर कोई भी नज़र नहीं आया। वो दोबारा दरवाज़ा बंद करने लगा, लेकिन तभी किसी ने उसे पुकारा, शमशेर अली। न जाने किस एहसास के तहत वो बाहर निकल गया। अगर उसके बस में होता तो वो शायद कभी न जाता, मगर ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कोई अनजानी ताकत उसे बाहर धकेल रही हो। वो बाहर सहन में पहुंचकर इधर उधर देखने लगा। सहन खाली था। वो वापस पलटने लगा तो अचानक ही ठठक कर रुकने पर मजबूर हो गया। उसके सामने कोई सफ़ेद लिबास में खड़ा था। उसका रुख दूसरी तरफ था। शमशेर अली ने कांपती हुई आवाज़ में पूछा, कौन हो तुम? वो शख्स वहीं पर खड़ा रहा। शमशेर अली ने दोबारा पूछा, बोलते क्यों नहीं? कौन हो तुम? इस बार उस शख्स की गर्दन पीछे की तरफ पलट गई, अलबत्ता बाकी जिस्म उसी पोजीशन में खड़ा रहा। उसकी गर्दन से खून बह रहा था। शमशेर अली उसे पहचान कर सुन सा खड़ा रह गया। वो शमसुद्दीन था।
मेरा बाप। शमशेर अली ने फटी फटी आंखों से उसे देखते हुए कहा। तो तुम यहाँ? अब्बा ने जहरीली मुस्कुराहट के साथ कहा। हाँ शमशेर अली, मैं ही हूँ, शमशेर अली ने हकलाते हुए कहा। लेकिन तुम तो मर गए थे ना? अब्बा की कटी हुई गर्दन से एक अजीब सी हंसी की आवाज़ सुनाई दी। हाँ, तुमने ही मुझे मार दिया था, लेकिन मैं उनसे हिसाब लिए बगैर कहीं नहीं जाऊंगा शमशेर अली। ये कहते हुए अब्बा उसकी तरफ बढ़ा तो शमशेर अली के होश उड़ गए। उसने भागने की कोशिश की, मगर उसे ऐसा लगा जैसे ज़मीन ने उसके कदम जकड़ लिए हों। उसने चीखने की कोशिश की, मगर उसके हलक से कोई आवाज़ ना निकल पाई। अब्बा ने एक झटके से उसे गर्दन से दबोचा, और फिर कब उसकी गर्दन किसी लकड़ी की तरह टूट गई ये पता ही न चला। इसके बाद जमीला की बारी आ गई। वो तो पहले ही डर से मर रही थी। जब उसने अब्बा को अपनी तरफ आते देखा तो हिस्ट्रियाई अंदाज में चीखते चिल्लाते हुए जिंदगी की भीख मांगने लगी। लेकिन उसे भी अपने किए का हिसाब देने का वक्त आ चुका था। मुझे उसकी चीखों और मन्नतों ने जागने पर मजबूर कर दिया था, और उसकी बातों से मुझे सारा मामला समझने में देर न लगी। दर हकीकत अब्बा की मौत के जिम्मेदार शमशेर और जमीला ही थे। शमशेर के जमीला से नाजायज़ खुफिया ताल्लुकात थे। जमीला के ही उकसाने पर शमशेर ने अब्बा की जान ली थी। उसके बाद सरकार साईं के कहे के मुताबिक अब्बा की गर्दन को कहीं और ले जाकर छुपाकर दफन कर दिया था। उन्हें इस पर एक खुसूसी अमल करना था, मगर कुदरत ने उन्हें सज़ा देने के लिए अब्बा की रूह को मोहलत दे दी थी। उस रात जमीला और शमशेर अली ही नहीं, सरकार साईं नाम का वो गंदा शैतानी जादूगर भी अपने अंजाम तक पहुंच गया। अब्बा ने मुझे बताया था कि उसका सर कहाँ दफन था। कमबख्तों ने अमीर होने के लिए उसके साथ काले जादू का एक तावीज़ लिखकर बांध दिया था। मैंने चाचा शेर नवाज के घर जाने के बाद सारी हकीकत उन्हें और अली को बता दी थी। सब कुछ जानने के बाद उन दोनों ने मेरा साथ देने का अहद कर लिया, और अब्बा की निशानदही करदा जगह से हमने खामोशी से उसका सर निकाल लिया, और उस तावीज़ को पानी में बहाने के बाद सर को गुस्ल देकर अब्बा की लाश के साथ ही दफन कर दिया था। उस रोज़ के बाद मुझे अब्बा नज़र नहीं आए थे। शायद उनकी रूह को सुकून मिल चुका था और वो अपने असल मकाम की तरफ चली गई थी। मैं चाचा शेर नवाज के घर रहती हूँ। अली से मेरी मंगनी हो चुकी है, और चाचा मुझे अपनी बेटी की तरह ही चाहता है, मगर फिर भी अब्बा की जब भी याद आती है तो दिल बेहद उदास हो जाता है। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता